Class 9, good morning. Let us revise your economics, chapter number 3, poverty as a challenge. Take this screenshot if you need it. Please take a screenshot. Define poverty in your words. गरीबी को अपने शब्दों में बताइए. Any person who is unable to fulfill his or her basic needs like food, shelter and clothes. It is also a situation in which parents are not able to send their children to school, or a situation where sick people cannot afford treatment. Poverty also means lack of clean water and sanitation facilities. It also means lack of regular job at a minimum decent level. Above all, it means living with a sense of helplessness. एक इंसान जो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान की सिचुएशन में होता है, उसे गरीबी कहते हैं. पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं प्रॉपरली भेज सकते पैसे की कमी के कारण, उनको ट्रीटमेंट नहीं दिला सकते. पॉवर्टी का मतलब साफ पानी, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ ना होना, रेगुलर जॉब ना होना. ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हेल्पलेस हो जाता है बंदा. पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड. गरीब लोग ऐसी स्थिति में होते हैं जहाँ पर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है हर जगह. इन फार्म्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन एट्सेट्रा. ठीक है, इसको गरीबी कहते हैं. Below are given some causes of poverty. Mention a moral lesson which you get from each cause. ये causes हैं कुछ गरीबी के. इन पर एक लेसन बताइए हर कॉज का. द फेलियर एट बोथ द फ्रंट्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी. तो इसमें ओवर पॉपुलेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी. सो बर्थ कंट्रोल इज मस्ट टू चेक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. आप लिखेंगे ओवर पॉपुलेशन जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है गरीबी का, इसलिए बर्थ कंट्रोल को देखना चाहिए, चेक करनी चाहिए पॉपुलेशन. दूसरा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्स. ये होगी इकोनॉमिक इक्वालिटी इज मस्ट फॉर रिमूविंग पॉवर्टी. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तभी है राइट, इक्वालिटी ना हो. तीसरा पॉइंट, in order to fulfill social obligations and observe religious ceremonies, people in India, including the very poor, spend a lot of money. इसके लिए आंसर में आप बोलेंगे we should not waste our hard-earned money on religious and other functions. मेहनत की कमाई को ऐसे नहीं खराब करना चाहिए. Now carefully read the newspaper report. ऐसा एक प्रश्न आएगा आपको बेटा, and answer the following question. Bhamori, a mother of 8, is happy and she has a water tank constructed for free and also earned money for its construction in a Rajasthan village where the largest beneficiary of National Rural Employment Guarantee Act scheme are women. ठीक है, NREGA स्कीम के जो बेनिफिशरीज हैं राजस्थान के गांव में वो औरत हैं. भामोरी एक मदर है, हैप्पी है, वाटर टैंक है कंस्ट्रक्ट किया हुआ फ्री में. द 60,000 लीटर वाटर स्टोरेज टैंक वॉज बिल्ट इन हर होम एट श्री बालाजी विलेज इन एरिड नागपुर डिस्ट्रिक्ट 150 किलोमीटर फ्रॉम जोधपुर अंडर द NREGA scheme that guarantees 100 days work in a financial year to every rural household whose adult members are willing to do unskilled manual labor. The tank has brought peace of mind to
her as earlier she had to trudge over 5 kilometers every day for 2 buckets of water for her family during the hot summer months. I hope समझ लग रहा है. We have spent rupees 1 lakh to construct this water storage tank for her, as we have done for many other families here in this village. Gram Sevak Lichi Ram told visiting reporters here. I worked for this project and earned rupees 100 a day under the NREGA scheme, Bhamori said, pointing out that she not only got the tank free but also earned money for constructing it. फ्री में ही टैंक नहीं मिला बल्कि उसने पैसे भी 100 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से कमाए हैं कंस्ट्रक्ट करते समय. I was able to open my first saving accounts at local post office, she said proudly. While the hardships of the villagers have reduced due to development project like water tanks and sanitation, better roads, the earnings under the NREGA scheme have also led to a better livelihood. Jethu Bhai, who runs an NGO in Pali district, said, "It is the first time in my married life that I have saved some money in a bank and can plan for education of my son," said Manju Parihar, a woman in her 30s who works at a Kacha road construction site at Ahor in Jailer district in south west Rajasthan along with over 40 others. ठीक है, अब इसमें 2 प्रश्न दे दिए गए हैं, उनके आंसर्स भी मैं आपको बता देता हूँ साथ में. इजी है फाइंड करने. वो कहता पहला प्रश्न, मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ NREGA. ठीक है, NREGA के कोई 2 फीचर बताओ. ये एक्ट प्रोवाइड करता है 100 दिन एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड. अंडर दिस एक्ट 1/3 जॉब आर रिजर्व फॉर वुमेन. ये पैरा में आया था, ठीक है, कि वुमेन ही बेनिफिशरीज हैं. 1/3 हिस्सा इनके लिए रिजर्व्ड है. ठीक. मेंशन एनी 4 वैल्यूज विच दिस सोर्स इज रिफ्लेक्टिंग. ये सोर्स कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है, 4 वैल्यूज़ आपको बता रहा है. वो क्या क्या है? पहली तो है जेंडर इक्वालिटी. आंसर में लिखेंगे जेंडर इक्वालिटी, मेल फीमेल बराबर. दूसरी बात आई थी उसमें पीस ऑफ माइंड. इनका काम इनको पीस ऑफ माइंड दे रहा है. एक कह रहा था कि अब मैं अच्छी लिवलीहुड कर सकता हूँ, पैसा बचा सकता हूँ एजुकेशन के लिए, बच्चे के पढ़ने के लिए, सेविंग मनी फॉर एजुकेशन. और चौथा वैल्यू इसमें दी थी कि हार्ड लाइफ ऑफ द रूरल पीपल ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़. चौथी ये पता चल रहा है कि हार्ड लाइफ ये कर रहे हैं व्यतीत क्योंकि इनके पास बेसिक रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए वो नहीं है. ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स थे इसके. फूड सिक्योरिटी इन इंडिया ख़त्म है, डिलीटेड है कोर्स, हमने ना पढ़ाया है ना पढ़ाना है. राइट. इसी पे देखो, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग अंडर पावर्टी इन इंडिया इज़, कितने पावर्टी में कितने लोग भारत में रह रहे हैं? 26 करोड़. आंसर है 26 करोड़. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर पावर्टी. इसमें से पावर्टी मेजर करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? इनकम एंड और कंजम्पशन लेवल. इनकम कितनी है, आय कितनी है और कितना खर्च किया जा रहा है, ये पावर्टी के लिए मेजर करने में इन चारों में से है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर आर यूज टू इंडिकेट ह्यूमन पावर्टी. ह्यूमन पावर्टी को कौन सा इंडिकेटर यूज? इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, राइट्स. इसमें से चारों ही हैं, चारों ही ह्यूमन पावर्टी के इंडिकेटर्स हैं. Who among the following insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people are free from suffering? ये किसने कहा था?
जब गरीब आदमी सफरिंग से बिल्कुल फ्री होगा तभी हम भारत को पूरा आज़ाद भारत कह सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, इंदिरा गांधी ने भी नहीं, सुभाष चंद्र ने भी, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। व्हाट इज एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया पर पर्सन इन अर्बन एरियाज? शहरी इलाकों में एक नागरिक की पर कैलोरी क्या है कंजम्पशन? 2400, 2100, 2300, 2500। तो आंसर है 2100 कैलोरीज है खपत हर इंसान की अर्बन एरिया में। व्हाट इज एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया एज पर पर्सन इन रूरल एरियाज? ये था अर्बन एरियाज का 2100 कैलोरीज। रूरल एरियाज ग्रामीण इलाकों में कितनी है? 2400, 2200, 2300 या 2500? वहाँ है 2400। ग्रामीण इलाकों में 2400 कैलोरीज आंसर। वाई आर कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज कंसिडर्ड हायर दैन इन अर्बन एरियाज? कैलोरी की रिक्वायरमेंट हायर रूरल एरियाज में कंसिडर की जाती है दैन अर्बन एरियाज। इसमें से क्या होगा? इनकम इन अर्बन एरियाज इज़ हायर, वहाँ ज़्यादा इनकम है, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा इनकम है, या जो लोग रूरल एरियाज़ में वो अपने आप को ज़्यादा परिश्रम में फिज़िकल वर्क में यूज़ करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज देमसेल्व्स इन मोर फिजिकल वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अर्बन पुअर? अर्बन पुअर में, शहरों में पुअर जो है वो कौन है? डोमेस्टिक सर्वेंट, वेंडर, रिक्शा पुलर या कैजुअल लेबरर्स? ठीक है, तो इसमें आंसर दिया है ऑल द अबव। ठीक, ऑल द अबव है। रेडी वाले, रिक्शा पुलर वाले, कैजुअल लेबर जब मिलती है जी, दिहाड़ी, और घरेलू सर्वेंट्स। ये मैच करना है आपको। सोशल एक्सक्लूजन, वल्नरेबिलिटी, पावर्टी लाइन, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूएन, इनके सामने सामने दे रखा है। तो अब आपको इसमें पढ़कर देखना है। ठीक है, पढ़िएगा इसे। ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, बी में भी हाँ। पॉवर्टी लाइन सी, दिस इज दी आंसर अगर पढ़ेंगे। फॉर द ईयर 2000 द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन इन रूरल एरियाज इन इंडिया वॉज फिक्स्ड एट। पॉवर्टी लाइन कितनी फिक्स की गई थी? 328 रुपये पर मंथ, 328 रुपीज़। देख लीजिए। डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन लिविंग इन अर्बन एरिया इज़ हायर। अर्बन एरिया में कैलोरी रिक्वायरमेंट पॉवर्टी लाइन के होते हुए भी हायर है, जैसे कि अगर हम एक हर पर्सन की लिविंग जो रूरल एरिया में उससे कंपेयर करें तो कौन सी अप्रोप्रिएट रीज़न है इसमें से? बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ मैनी एसेंशियल प्रोडक्ट्स इन अर्बन सेंटर्स। अर्बन सेंटर्स में जो आम चीज़ें हैं उनके हाई प्राइस हैं, या जो अर्बन एरियाज़ में लोग अमीर हैं, या अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, या अर्बन एरियाज़ के लोग लग्जरी कंफर्ट के आइटम्स खरीदते हैं? नहीं जी, कोई नहीं, ये पहला वाला है। बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ मैनी एसेंशियल प्रोडक्ट्स इन अर्बन सेंटर्स। इन ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर पॉवर्टी लाइन कौन है? वर्ल्ड बैंक, IMF, NSSO या UNO? वर्ल्ड बैंक है जी। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर पॉवर्टी है वर्ल्ड बैंक। इसमें से ट्रू विद रेफरेंस टू पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी के रेफरेंस में ट्रू क्या है? द पॉवर्टी रेशियो इज हायर इन रूरल एरियाज एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। द पॉवर्टी रेशियो इज डिक्रीजिंग।
ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स, ए सही है बी गलत है, या ए गलत है बी सही है, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत हैं। तो हम कहेंगे दोनों ही सही हैं। पावर्टी रेशियो हायर है रूरल एरियाज़ में अगर हम कंपेयर करें, और पावर्टी रेशियो डिक्रीज़ भी हो रहा है, दोनों सच है। व्हाट इज़ एवरेज पावर्टी रेशियो इन इंडिया? इंडिया में एवरेज पावर्टी रेशियो कितना है? 26% है। ना 25, ना 27, ना 26, 26 और 28, 25, 26, 27, 28, 26 है। व्हाट इज़ NSSO? NSSO स्टैंड्स फॉर नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये है NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इस ग्रुप में से कौन सा वल्नरेबल ग्रुप है पावर्टी के लिए? शेड्यूल ट्राइब, अर्बन लेबर्स, रूरल एग्रीकल्चर या अपर कास्ट। ठीक है, पावर्टी से जो बिल्कुल निजात पाए हैं वो है अपर कास्ट। ठीक है, अपर कास्ट निजात पाए हुए हैं, वल्नरेबल हैं। इनमें से सोशल ग्रुप में से हाईएस्ट पावर्टी रेशियो किसका है? शेड्यूल ट्राइब का, शेड्यूल कास्ट का, बैकवर्ड क्लास का या अर्बन लेबरर्स का, शहरी लेबर्स का? शेड्यूल ट्राइब्स का भाई। हाईएस्ट पावर्टी रेशियो शेड्यूल ट्राइब्स का है। इसमें से मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पावर्टी कौन सा है? मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पावर्टी SC ST या मार्जिनल फार्मर्स, जो बिल्कुल मार्जिन पे हैं, फार्मर्स जिन पर खेत वेत भी नहीं होते, काम करने वाले, जो लैंडलेस। इसमें से कौन सा सोशल ग्रुप है जिसने पावर्टी रेशियो में डिक्लाइन नहीं देखा? शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, अर्बन। शेड्यूल ट्राइब, इसका भी आंसर शेड्यूल ट्राइब है, पीछे वाले की तरह। द पुअरेस्ट स्टेट्स इन इंडिया आर, कौन सा सबसे गरीब है? उड़ीसा है। सबसे गरीब प्रदेश भारत का उड़ीसा है, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना बिहार। इनमें से इंडियन स्टेट्स में से मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, ठीक है, बिहार। बिहार में लोग पावर्टी लाइन से बिलो रह रहे हैं, बहुत परसेंटेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव शोन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पावर्टी रेशियो? किस में पावर्टी रेशियो गिरा है? पावर्टी रेशियो गिरा है, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। पंजाब एंड हरियाणा में, केरला और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, और पंजाब और बिहार। इसका आंसर होगा केरला एंड आंध्र प्रदेश ने एक पावर्टी रेशियो डिक्लाइन देखा है। इनमें से कौन सा फोकस है रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए? केरला। रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए कौन सा स्टेट फोकस है? केरला, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इन स्टेट्स में से लैंड रिफॉर्म मेजर्स ने पावर्टी रिड्यूस की है, कौन सा है? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा। इन रिड्यूसिंग पावर्टी, वेस्ट बंगाल। इन स्टेट्स में से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने पावर्टी को रिड्यूस करने में मदद की, कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु या बिहार? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तमिलनाडु। इनमें से कंट्रीज़ में से 1981 से 2001, इन 20 सालों में पावर्टी कहाँ ज़्यादा राइस की? सब सहारन अफ्रीका में, इंडिया में, चाइना में या रशिया में? भैया अफ्रीका में बहुत है गरीबी, इन 20 सालों में बहुत गरीबी हुई। ग्लोबल पावर्टी रेशियो 2001 का क्या है? 40%, 25%, 30% या 28%? 28%। ग्लोबल पावर्टी रेशियो 2001 इज़ 28%। इनमें से कौन सा कंट्री में धीरे धीरे पावर्टी कम हुई है? इंडिया में, USA में, चाइना में या बांग्लादेश में? पावर्टी कम हुई है धीरे धीरे, ये है चाइना। पावर्टी डिक्लाइन हुई है चाइना में, तो साउथ एशियन कंट्रीज़ कौन सा अप्रोप्रिएट रीज़न है इसमें? मैसिव इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ।
ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? भैया मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज भी है और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, तो ए एंड बी बोथ सही है। इन विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी हैज़ रिजन अप? पॉवर्टी कौन से रीजन में ज़्यादा बढ़ी? एशिया में, सब सहारन अफ्रीका में, यूरोप में, या नन ऑफ दीज? फिर पॉवर्टी का आप याद रखिए, पीछे पड़ा था बहुत गरीब, सब सहारन अफ्रीका। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो? इंडिया में है, चाइना में है, नाइजीरिया में है, या पाकिस्तान? इसमें होगा नाइजीरिया। हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो नाइजीरिया में। करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लैंक्स। 2 प्लैंक्स के ऊपर बड़े विस्तार से गवर्नमेंट की एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी, आज की एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी है। कौन सा पॉइंट सही है इसमें? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, यही सही लग रहा है। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एजुकेशन, एजुकेशन, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन। ठीक है, पहला है इसमें, पहला सही रहेगा। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक स्थिति के बढ़ावा, और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, गरीबी हटाओ प्रोग्राम्स को टारगेट किया, टारगेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? पॉवर्टी किसने लगातार बनाए रखी? लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हायर पॉपुलेशन ग्रोथ। ये है, जनसंख्या बढ़ती ही चली गई और इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती गई। NREGA क्या है? ये अभी आपके पीछे बताया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल एक्ट है ये। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये कब पास हुआ था? 2005 में अगस्त, 2005 सितंबर में, 5 अक्टूबर में, या नवंबर में? ये सितंबर में हुआ था, 2005 सितंबर में। इनमें से कौन सी स्कीम है जो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्व रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ उनको देती है जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं रूरल एरियाज़ में या छोटे छोटे गांव में? NFWP, AAY, PMRY और WRTC। AAY नहीं, PMRY है। Which of the following योजनाज have been launched to bring the assisted poor families above the poverty line by organizing them? कौन सी योजना करी गई थी लागू? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। इसमें सरकार ने सब्सिडी दी और बैंक भी लोन देता रहा। ये है CGSY, SGSY, नॉट PMGY पिछले का था, ये SGSY, इसके फुल फॉर्म भी देखिएगा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग योजना प्रोवाइड एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस बेसिक सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा? कौन एडिशनल हेल्प देता है एजुकेशन, हेल्थ वगैरह में? PMGY। फॉर हाउ मेनी डेज NRGA प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट? 100 दिन के लिए। पढ़ा भी था अभी हमने एक पैरा भामोरी का, 100 दिन के लिए। कौन सा प्रोग्राम गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कंपनसेशन उनको जो बेरोजगार हैं अगर 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट एक साल में? इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर द सेम क्या? लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, ये चीज़ लागू नहीं सही तरीके से हुई। राइट टारगेटिंग, सही टारगेट करना। ओवर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर ज़्यादा डिपेंड करना। सिर्फ ए है, ASE है, BC है और या AB है। ये A और B है, तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। राइट टारगेटिंग। इसमें से ह्यूमन पॉवर्टी के कंपोनेंट्स क्या हैं? एजुकेशन है, हेल्थ है, शेल्टर है। बताइए इसमें NRGEA इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट
कंपोनेंट है ह्यूमन पॉवर्टी का, NRGEA. Which of the following programs of the government provide self employment for educated unemployed rural? कौन सा प्रोग्राम है जो कि रूरल एरियाज़ में एजुकेटेड जो लोग बच्चे हैं उनको बेरोज़गार का वो करता है? वो है PMRY. ठीक है, रोज़गार देता है PMRY. SGSY क्या है? SGSY क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. ठीक है, स्वर्ण जयंती से याद रखो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. द रिजल्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द एंटी पावर्टी स्कीम हैज़ बीन मिक्स्ड. रिजल्ट जो है एंटी पावर्टी स्कीम्स के मिक्स किए गए हैं. ठीक है, इसमें ये छपाई नहीं है ढंग से, इसमें यहाँ छपा नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन बेकार है. एंड द लास्ट क्वेश्चन, 45th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लोएस्ट पावर्टी? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर. सबसे लोएस्ट पावर्टी जो है छोटा सा स्टेट वो है जम्मू एंड कश्मीर. तो ये था बेटा क्वेश्चन आंसर्स एंड MCQs और शॉर्ट टर्म्स अपने आप देख लीजिए. ये था आपका चैप्टर जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3, पॉवर्टी एज अ चैलेंज. ये लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट्स लीजिए. फिर दोबारा पढ़ लीजिए. अगेन रीड इट एंड लर्न देम. ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. वही फ़ायदे में है जो वीडियोस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं सर के साथ साथ. राइट, ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट. 4th पेज स्क्रीनशॉट लीजिए. और द लास्ट पेज, इसमें एक क्वेश्चन गलत है क्योंकि वो राइट. अब क्वेश्चन जो थे बामोरी वगैरह का वो भी आपको बता दूँ. आपके पास बुक तो होगी वैसे ही. तो ये सब चीज़ें आपकी हट गई हैं. तो इसमें चैप्टर था ये इकोनॉमिक्स का है. ओके, ये भी आप ले लीजिए. ये क्वेश्चन आंसर्स है पॉवर्टी एज अ चैलेंज के. इनको रीड कीजिए एंड 101% फ़ायदा होगा. ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट. ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, पढ़िए, इनमें अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए. इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर बन जाना है आपका. राइट, 4th लेसन नहीं है. ठीक, ओके चिल्ड्रन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. इसको रिवाइज ज़रूर कीजिए.